یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 12 جولائی 2020 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون ساکرامنٹ، سنہری متن ہوسے۔ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں اور خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ جوابی مطالعہ۔ زبور۔ اے خدا، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال۔ تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گناہ گار تیری طرف رجوع کریں گے۔ اے خداوند، میرے ہونٹوں کو کھول دے تو میرے منہ سے تیری ستائش نکلے گی، کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں ورنہ میں دیتا۔ سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں۔ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ اے خدا، تو شکستہ اور خستہ دل حقیر نہ جانے گا۔ درسی واز بائبل میں سے۔ میکا۔ میں کیا لے کر خداوند کے حضور آؤں اور خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں؟ کیا سوختنی قربانیوں اور یکسالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں؟ کیا خداوند ہزاروں مینڈھوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پلوٹھے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں دے دوں؟ اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ خداوند تجھ سے اس سے زیادہ کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ سلاطین۔ جب یوسیہ سلطنت کرنے لگا تو 8 برس کا تھا۔ اس نے 31 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نگاہ میں ٹھیک تھا اور اپنے باپ داؤد کی سب راہوں پر چلا۔ سلاطین۔ اور سب لوگوں کو یہ حکم دیا کہ خداوند اپنے خدا کے لیے فسح مناؤ، جیسا عہد کی اس کتاب میں لکھا ہے، اور یقیناً قاضیوں کے زمانہ سے جو اسرائیل کی عدالت کرتے تھے اور اسرائیل کے بادشاہوں اور یہودا کے بادشاہوں کے کل ایام میں ایسی عید فسح کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یوسیہ بادشاہ کے 18ویں برس یہ فسح یروشلم میں خداوند کے لیے منائی گئی، اور اس سے پہلے کوئی بادشاہ اس کی مانند نہیں ہوا تھا جو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنے سارے زور سے موسیٰ کی ساری شریعت کے مطابق خداوند کی طرف رجوع لایا ہو، اور نہ کوئی اس کے بعد اس کی مانند برپا ہوا۔ رومیو۔ پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے جاؤ۔ متی۔ اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے اسے جواب دیا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ متی۔ اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر کہنا، استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ
तेरे हाँ ईद फसा करूँगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फिसा तैयार किया। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनसे कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊँगा, उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊँ। फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। यूहन्ना। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। इस पर उसने उसको उनके हवाला किया कि मसलूब किया जाए। यूहन्ना। हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के कि अभी अंधेरा ही था, कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से हटा देखा। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो 2 फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने हुए, एक को सराहने और दूसरे को पहनताने बैठे देखा, जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उसे इब्रानी जुबान में कहा, रबूनी, यानी ए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी, मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे बातें की। इब्रानियों। खुदा इत्मीनान का चश्मा जो बड़े चरवाहे यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह को अब्दी अहद के खून के बाइस मुर्दों में से जिंदा करके उठा लाया, तुमको हर नेक बात में कामल करे, ताकि तुम उसकी मर्जी पूरी करो और जो कुछ उसके नज़दीक पसंदीदा है यीशु मसीह के वसीला से हमें पैदा करे, जिसकी तमजीद अब्दुल-आबाद होती रहे। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत हयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। सारी जानिसारी का मादा इलाही मोहब्बत, बीमारी की शिफा और गुनाह की तबाही का अक्स और इजहार है। हमारे मालिक ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। खून का रूहानी जौहर कुर्बानी है। यीशु की रूहानी कुर्बानी की अफादियत इससे कहीं बढ़कर है जो हम इंसानी खून के इदराक से अयां कर सकें। जब ये यीशु का मादी खून मलाउन दरख्त पर बहाया गया, तब वो गुनाहों से पाक करने के लिए इतना मौसर नहीं था जितना उस वक्त जब वो खून उसकी रगों में बहता था, जब वो हर रोज अपने बाप का काम करने जाया करता था। उसका हकीकी खून और बदन उसकी जिंदगी थी, और वो हकीकतन उसका बदन खाते और खून पीते हैं जो उस इलाही जिंदगी में हिस्सा लेते हैं। वो फिसा जो यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ निसान के महीने में अपने मसलूब होने से कबल खाई, वो एक गमगीन मौका था, एक सोगवार खाना जो दिन के आखिर पर पुरनूर चांदनी में था, जिसके साथ तेजी से गहरे साए इर्द गिर्द फैल रहे थे। और इस खाने ने मादे के लिए यीशु की रस्म परस्ती या मंजूरी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। उसके पैरोकार अफसुर्दा और खामोश अपने मालिक के साथ होने वाली बेवफाई की घड़ी पर गौर कर रहे थे। आसमानी मन में हिस्सा लेते हैं जो माजी के बियाबान में सताए हुए सच्चाई के मानने वालों ने खाया था। उनकी खुराक वाक़तन आसमान से उतरी थी, बीमारों को शिफा देने और गलती को बाहर निकालने वाली रूहानी हस्ती की ये बहुत बड़ी हकीकत थी। उनके मालिक ने उन्हें ये पहले ही वाज़ेह कर दिया था, और अब ये रोटी उन्हें खुराक दे रही थी और उन्हें कायम रख रही थी। वो इस रोटी को घर घर पहुंचाते थे,
इसे दूसरों के लिए तोड़ते, वजाहत करते थे, और अब उसने उन्हें तसल्ली दी। रूहानी हस्ती की इस सच्चाई के लिए उनका मालिक तशद्दुद सहने को था, और दुख का ये प्याला आखिरी कतरे तक खुश्क होने को था। उसने उन्हें छोड़ देना था। उस पर छाने वाली अब्दी फतह के बड़े जलाल के साथ उसने शुक्र किया और कहा, तुम सब इसमें से पियो। जब उसके अंदर इंसानी अंसर इलाही अंसर के साथ कशमकश कर रहा था, तो हमारे अजीम उस्ताद ने कहा, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, यानी मुझ में बदन नहीं बल्कि रूह जाहिर हो। ये रूहानी मोहब्बत की नई समझ है। ये सभी कुछ मसीह या सच्चाई के लिए मुहैया करता है। ये दुश्मनों को बरकत देता, बीमारों को शिफा देता, गलतियों को खारिज करता, खताओं और गुनाहों में मुर्दा लोगों को जिंदा करता, और जो दिल के गरीब और फिरौतन हैं उनको अंजील की खुशखबरी सुनाता है। खुदावंद के आखिरी खाने और गलील की झील के साहिल पर एक ताज़ा सुबह के पहर में खुशगवार मुलाकात में अपने शागिर्दों के साथ उसके रूहानी नाश्ते में कितना फ़र्क है। उसका दुख जलाल में बदल गया था, और उसके शागिर्द पशेमानी में रंजीदा हुए, दिल की तंबीह हुई और तकब्बुर की मुलामत हुई। नई रोशनी के तुलू होने पर हमारे खुदावंद के साथ ये रूहानी मुलाकात सुबह का वो नाश्ता है जिसकी याद मसीही साइंसदान मनाते हैं। दोबारा उसकी हुजूरी हासिल करने के लिए और खामोशी के साथ इलाही असूल, मोहब्बत के साथ शराकत करने के लिए वो मसीह यानी सच्चाई के आगे सजदा करते हैं। वो उनके खुदावंद की मौत पर फतह, मौत के बाद उसकी बदनी आजमाइश, इंसानी आजमाइश की इस मिसाल, और जब वो मादी नज़र से ओझल ऊपर उठाया गया तो मादे या जिस्म से ऊपर उसके रूहानी और आखिरी सऊद को मनाते हैं। हमारा बपतिस्मा सारी गलती से हमारी पाकीज़गी है। हमारा यूखरिस्त एक खुदा के साथ रूहानी शराकत है। हमारी रोटी जो आसमान से उतरती है सच्चाई है। हमारा प्याला सलीब है। हमारी मै यानी वो मै जो हमारे मालिक ने पी और अपने पैरोकारों को भी इसका हुक्म दिया, मोहब्बत का इल्हाम है। यसू का आखिरी सबूत उसके तालिब इल्मों के लिए सबसे बुलंद, सबसे ज़्यादा काबिल यकीन, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद था। वहशी ज़ालिमों का बुग़्ज़ इंसान और उसके सताने वालों की तकरीम से मोहब्बत की खुदकुशी और गद्दारी खुदा के सच्चे इलाही ख्याल से मुस्तरद हो गए, जिसका यसू के सताने वालों ने मजाक उड़ाया और उसे फना करने की कोशिश की। सच्चाई का आखिरी इजहार जिसकी यसू ने तालीम दी और जिसकी खातर वो मसलूब किया गया, उसने दुनिया के लिए नए दौर का आगाज़ किया। वो लोग जिन्होंने उसके तासुर पर रोक लगाने के लिए उसे ज़बह किया, उन्होंने उसे बरकरार रखा और उसे वुसअत दी। उस प्याले की कड़वाहट के सबब जो उसने पिया, यसू इजहार में ऊपर उठाया गया। इंसानी कानून ने उसे रद्द किया, मगर वो इलाही साइंस को जाहिर कर रहा था। उसके दुश्मनों की हद से ज़्यादा बर्बरियत के बावजूद वो मादे और फ़ानियत के इनहराफ में रूहानी कानून के तहत काम कर रहा था, और इसी रूहानी कानून ने उसे कायम रखा। इलाही को हर मुकाम पर इंसान पर फातेह होना चाहिए। वो साइंस जिसकी तालीम यसू ने दी और उस पर ज़िंदगी गुजारी, उसे ज़िंदगी, मवाद और जहानत से मुतल्लिक़ तमाम तर मादी अकायद पर और ऐसे अकायद से फ़रोग पाने वाली कसीर गलतियों पर फ़तहमंद होना चाहिए। मोहब्बत को नफ़रत पर हमेशा फ़तहमंद होना चाहिए। इससे कब्र के कांटों को ताज पहनाने के लिए चुना जाए और रूह की बर्तरी को जाहिर किया जाए। सच्चाई और ज़िंदगी को गलती और मौत पर फतह की मोहर सब्त करनी चाहिए। दुआए खैर कहती है, ऐ अच्छे और वफादार खादम, तूने बहुत अच्छा किया। वो सब जो यसू की यादगारी में रोटी खाते और मैं पीते हैं, वो हकीकत में उसके प्याले और उसकी सलीब में से बांटने की और असूल मसीह की खातिर सब कुछ छोड़ने के लिए रजामंद हैं। तो फिर इस इल्हाम को एक मुर्दा रस्म के साथ क्यों मंसूब किया जाता है, बजाय गलती को दूर करते हुए और बदन को पाक और खुदा के लिए काबिल कबूल बनाते हुए ये दिखाया जाए सच्चाई का फहम फराहम हुआ है। अगर मसीह सच्चाई इजहार में हमारे पास आया तो किसी दूसरी यादगारी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इजहार इमानुएल या खुदा हमारे साथ है, और अगर कोई दूसरा हमारे साथ है तो उसकी यादगारी मनाने की क्या ज़रूरत है। अगर वो सब जिन्होंने साक्रामेंट में हिस्सा लिया यसू के दुखों की हकीकतन यादगारी मनाई थी और उसके प्याले में से पिया था, तो वो दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देते
وہ سب جو مادی علامات کے وسیلہ اس کی یادگاری کے متلاشی ہیں، وہ صلیب اٹھائیں گے، بیماروں کو شفا دیں گے، بدروحوں کو نکالیں گے، اور مسیح سچائی کی خوشخبری غریبوں، منفی سوچ والوں کو دیں گے۔ وہ 1000 سالہ دور لائیں گے۔ اب میں میربی کریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔